probably somehow in October or November of 2022, I had the Exactly. बिफोर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यू नीड टू आइडेंटिफाई कि प्रॉब्लम कहाँ है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए. तब पे वन ऑफ द की थिंग्स दैट आई पिच्ड इन वाज दैट आई एम फेमस ऑन इंस्टाग्राम. आई हैड अबाउट 17,000 फॉलोअर्स एट द टाइम एंड आई वाज मेकिंग कर पाऊंगा. मैंने 50 पे सारा सेल आउट किया Oh, और मेरे पास हाथ में आए कोई 13-13,500 रुपए. एंड आई वाज लाइक ब्रो ये. सो मैं ये करता हूँ हमेशा कि वेन एवर माई सोर्स ऑफ इनकम लैंड्स इन टू माई अकाउंट, द फर्स्ट थिंग दैट आई डू, सबसे प्लीज इन्वेस्ट अर्ली इन स्टॉक एक्सचेंज. डू इट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, नॉट फॉर द सेक ऑफ मनी एट फर्स्ट. सही है. वंस यू अंडरस्टैंड द गेम और Assalamu alaikum, everybody. Welcome back to Campus to Career podcast. This is your host, Rasik Askar. Today we have with us Zaid Hassan. He's a talent recruiter turned product manager who's now deeply invested in personal finance and investment strategy. What makes Zaid's story special and stand out from the rest is that he's lived on both sides. He's hired the talent and now he builds product that people use. Plus, he's also figured out how to invest in himself and his future while building his career. So, without further ado, let's hear from him directly. Hi, Zaid. I hope you're doing well. hello, Rasik. Thank you so much for having me. It's pleasure to be here, and thank you so much for that wonderful interview. I'm glad to be part of this podcast, and it's fun to be here. I hope Yeah. things are looking exciting today. Yeah, inshallah. Let's see how it goes. I'm very excited about this, especially because of the, personal strategy and investment angle. I'm also very sort of passionate about it. But let's get to that towards, I think, in the second half. First of all, for the audience, could you please tell us a bit about yourself, who you are exactly, how has your journey been so far, where did you graduate from, what were your studies like, and how did you end up where you are today? Amazing. I'll try to begin it from halfway through, from the time when I was done with my A levels. So I did my A levels as a private candidate from a small city called Hyderabad, and then I moved to Islamabad, and then I was very fond of accounting, finance, numbers from a very young age. So O levels was also accounting, business, economics. So numbers was the thing that I wanted to learn and understand. And then I opted for a qualification which is called ACCA, which is something that felt very relevant. Not CA, it's the CA for UK, just to make it easy for everyone to understand. Yeah. So I went through those examinations, and that is how I was very fond of the accounting world and the finance world. And I haven't completed my education in terms of ACCA yet, and that was one of the reasons for me to begin my journey. And very similarly, at the time, I was very fond of startups like SadaPay, startups like Airlift, and a lot other names, Bazaar Technologies. I was very fond of them, but one specific startup, that is SadaPay, I deliberately wanted to be part of it because of their fintech thing, because it had a little bit of finance to it that amused me a lot. They solved a very huge problem in Pakistan at the time, and then there was tech part as well. So I very very I resonated a lot with the ideology. Funny enough that I made a LinkedIn account because SadaPay in their early days were very active on LinkedIn. Yeah. And I made my account. I understood what the LinkedIn game was looking like, and probably somehow in October or November of 2022, I had the courage to send a message to Brandon, the founder of SadaPay, and I asked him. I basically just said I would love to be part of your mission, whatever you're doing. I would love to be part of it. And the idea was still there. I every single day I would go to SadaPay's website. There was a open application thing there, and I would apply every single day. And it was frustrating every time I had to change something in myself to be part of SadaPay, but I couldn't. This was back in 2022. And whilst I was doing my ACCA, so ACCA gives you a lot of flexibility in terms of work, in terms of starting off immediately.
So I was very fond of that, and I wanted to begin my journey because I've always believed in practical learning. Yeah. And by practical learning, I mean something that I would learn on the go. I think that's the best kind, rather than just focusing on books and understanding, Correct. whatever is happening in the books. I never wanted to be a bookworm. I always wanted to, learn from people around me. So that is something that did and went through. And moving forward, I applied again for a role at Sadape as a customer experience associate, Yeah. and this too happened, I think, in 2023, somewhere around in the month of April. And I believe you were also part of my interview along with another fellow, Rehan Nasir. And yeah, it was fun being part of something very revolutionary. And then I somehow manifested it so hardly. It happened, Alhamdulillah. All praises to the Most High for this. So yeah, I joined Sadape in the month of May 2023, and that's how my journey started in the customer experience department. And it was a great learning for me, especially now when I look at it from a product manager's perspective. I think that was a very important Yeah. key learning for me, because I was on the other side of the table trying to understand user perspective, user experience, what people felt when it came to SadaPay, when it came to using it, when it came to the entire user journey. And you, as a customer experience associate, would have to understand where a customer could go through in terms of problems. So Yeah. there were a lot of things. And yeah, then I turned into, I transitioned into the talent team, which is also a very funny story, the people and culture team. So yeah, it's been fun. What's the story? I don't know, and I'm sure the people would love to know as well. So at my time at Sadape, the funny part was, um, I somehow understood that if I would transition to the finance team, which was an easy route for me to Yeah. to be in, Yeah. I felt like I wouldn't stay creative enough. Say. And it's the kind of job that you do just to stay behind the screen. And and no offense, Yeah, yeah. I come from an accounting and finance background, but I also have that creative juice to understand, to be more creative. But in finance, how creative could I be? So I thought that would be a limiting factor. And then in terms of impact, I felt there were already such amazing, brilliant, talented people in the finance team. I felt I wouldn't be able to create enough impact in that specific team in my role or something, probably at the time. So I started looking at things from my perspective, where I could probably learn things, where I could grow, where I could build systems and processes, where I could. So I wanted to find a problem and solve it. And the finance team had already solved the entire thing because it was too regulated with State Bank and a lot of other things. And then I also wanted to analyze that my personality is I'm a very extroverted guy. I like talking to people. And I found that this role is something that is going to be really relevant with my personality, with something that this is something I love doing. So I've thought of it in a way that this is something that I would do very naturally, and this is something that would resonate to me. And because I didn't have the exposure of the people and culture side, so I wanted to get through that part. So the finance team usually would refer to me in the office to come to their team, but I started talking to, and the fun part is, the people and culture team, when I wanted to move to that team, I didn't just wanted to go to the people and culture team. I specifically wanted to go to becoming a talent recruiter. Okay. And I say this because I talk to every single one in the talent team to understand what they do, how they're doing, what are their processes. I would take out 30 minutes in my time, and I would ask I would ask all the managers in the team to just sit down, just tell me all about the process and help me learn, to the point that I also had one of the sessions with the VP of people and culture, just to understand what she does in this entire team. Yeah.
And then when the role opened up, I applied for it. I went through a regular process, and I transitioned to that role to becoming a talent associate at SadaPay. So from what I hear, two things really stand out. Ek to I feel like that you being obsessed with something or manifesting something, and then eventually working towards that and Yes, and sort of getting that. It's not like it was served into a plate for you. You had to not at work all. for it, Yeah. obviously. And secondly, I think what really stands out in your conversation so far is the fact that you or it's just my take that maybe you have a problem solving mindset, right? कि मसला क्या है उसको किस तरह से break down करना है, and then how are you going to help or add value to, let's say, whatever field or department you're going into. And perhaps this is also something that they teach or it is required in the product side as well. So I think 100%. that Yes. must have really helped in currently what you're doing. Yeah, yeah, absolutely. So when I moved to the talent team, I found out that there was no applicant tracker system being used at SadaPay, Yeah. and that was, I think, one of the key learning points again, because I found out that there is no system in place, a specific system that could have helped me. But when I look at it from today's perspective, if I had, or if there were an ATS at the time, I wouldn't have Yeah. solved the problem. So it was basically a vacuum that you saw, an opportunity Yes, that you saw, and you yes, were like, okay, मैं ये करता हूँ, just so that you could sort of sorry. complete your manifestation. Right? Yes, yes. कि So मुझे बस किसी तरह घुसना है, whatever opportunity I get, I'm gonna take it. बिल्कुल। तो क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टम नहीं था ना, और मैं जब टैलेंट में गया था तो आई वाज लाइक कि ये सारे काम रिक्रूटमेंट वाले हैं, दिस इज पार्ट ऑफ माय जेडी, दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट आई हैव टू डू। आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर समथिंग जो कि मेरे जेडी में नहीं है और मुझे करना है, Nice. जो कि समथिंग दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स। मैंने कभी सिस्टम या प्रोसेस बनाया नहीं था, आई वाज जस्ट ऑब्सेस्ड विद सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। लेकिन उसमें मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट मैनेजर्स के साथ भी इन द मीन टाइम आई यूज टू कनेक्ट, एंड दे टॉट मी दिस थिंग, you don't always just solve a problem. Exactly. Before solving a problem, you need to identify कि प्रॉब्लम कहाँ है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। Yeah. आई थिंक वो आराम आराम से माइंडसेट बिल्ड होता रहा। बहुत सारी किताबें पढ़ता रहा मैं ऑन द गो, इवन बिफोर कमिंग टू द टैलेंट पार्ट। आई वुड रीड अ लॉट ऑफ बुक्स लाइक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। मुझे चीज़ें सीखनी थी, मुझे था कि मैं किस तरह से लोगों से बात करूँ, हाउ टू मेक पीपल फील एट ईज, how to understand where they're coming from and everything. तो बड़ी मजे की चीज़ थी, and that is where I built an ATS on Notion, just through my own understanding, learning over the weekends. That's nice. And I feel like saying specifically about SadaPay, because that's a commonality both of us share. I personally feel like that in whatever department we were, the element of this sort of problem solving thinking slash product management or whatever, in one way or the other, we were constantly being drilled into, and it was being instilled into our mind. Let's say Yes, if we were to raise an issue, we were to not just be gently pushed back, but actually be criticized to the extent that we got to understand कि अच्छा नहीं, वाकई में ये इतना बड़ा मसला नहीं है जितना हम सोच रहे थे. Maybe we need to alter our thinking, we need to yes, break it down and whatnot. So I think huge credit goes to all of the product managers over there as well, because I feel 100%. like a product में जाना या आना या उसमें रहना is not the goal, I guess. But what's important is it's that जिस मर्जी डिपार्टमेंट में हो, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉर्ट ऑफ आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही है, एंड आई थिंक देन अगेन एज टू यू पुट इट इन वेरी राइट वर्ड्स, इट वाजंट कि आई वाज ऑलवेज someone who understood. मुझे honestly जो product managers थे या associate product managers थे SadaPay पे, they made me realize this thing. And then moving on to when I moved to Edge as well, वहाँ पे भी मुझे जो product managers थे, they made me understand कि whatever you're doing is amazing in talent, and we understand, but your mindset is instilled in this way कि आप you do this. And every founder out there is a product manager, क्योंकि product manager is the
essential idea is you identify a problem and you try to solve it with the help of people managing other departments as well. Yeah. So it's a mix and match of a lot of things, and then you follow through the path. And then the way you mentioned it, कि for example जब हम काम कर रहे थे आप और हम मिलके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि हमें लग रही थी कि यार ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इट वाजंट. व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम अ बर्ड्स व्यू, Yeah. तब Yeah. आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो छोटा सा प्रॉब्लम, देयर आर मल्टीपल अदर प्रॉब्लम्स टू लुक फॉरवर्ड टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व देम. Correct, correct. Okay, so Zed, talking purely on from a recruiter's perspective, let's say, and for the audience that will be watching this, what do you suggest is sort of the steps that one should take, let's say, soon after graduation? क्या वो steps लेने चाहिए to sort of end up where they want to end up? Or let's say, for a person like me, I was really confused when I graduated. BBA की डिग्री की है, बहुत जनरलाइज्ड है, पता नहीं है क्या करना है, बस अल्लाह की तरफ से जिधर घुस गए वहाँ पे जो काम आता था कर लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर who know what they want to do, but they struggle in doing that. तो वो sort of identification किस तरह से होती है, and what do the recruiters actually look into? Let's say if they're hiring for a certain role in a startup, or let's say an organization, with context to your experiences so far. Wonderful. You've put me in a hard spot. Yeah. सो जो जर्नी है किसी भी इंडिविजुअल की, आई फील लाइक कि वो स्टार्ट होती है जब वो सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ देयर यूनिवर्सिटी होते हैं. एंड आई से दिस बिकॉज इवन आफ्टर यू ग्रेजुएटेड, जो शुरू के पहले 2-3 साल हैं इज़ ऑल एक्सपेरिमेंटल. तो आई वुड एडवाइज पीपल टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट बिफोर हैंड. Nice. मतलब वो जो इंटर्नशिप वाला पार्ट है, डू दैट वेरी सिंसियरली. डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग एन इंटर्नशिप. फाइंड अ प्लेस जहाँ पे आपको एक्चुअल में इंटर्नशिप करनी चाहिए. आप इंटर्नशिप इज़ ऑल एक्सपेरिमेंटिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ इस कंपनी में काम कैसे होता है. सही है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उस चीज़ को थॉरली करें, मतलब इसको इन्जॉय करें, इन्जॉय द प्रोसेस ऑफ डूइंग एन इंटर्नशिप, एंड देन एक्चुअली राइटिंग डाउन पॉइंट्स कि भाई मैंने इस इंटर्नशिप से मैंने 3 महीने इस जगह पे लगाए, व्हाट डिड आई एक्चुअली लर्न. सही है. Once you start writing this down in terms of wordings, you actually start putting it on your piece of resume as well. Yeah. That is how you do it. Secondly, when you are graduated, don't apply for every single job. Don't do that. It's one of the biggest mistakes one can do, क्योंकि आपकी CV या आपकी resume irrelevant हो जाती है हर role के लिए. I see. सही है. Okay. Understand hierarchy. For example, if I've graduated, I cannot become a manager because I don't have the experience to manage a department. Yeah. It's very easy. Find associate, entry level jobs, internships converting into a job. You need to step ladder होता है, Yeah. one by one करना है आपने. Yeah. तो do that. Very important. Don't ChatGPT things for your resume. Don't do that. जितना ChatGPT आप यूज़ करते हैं उतना मैं भी यूज़ करता हूँ, और मैं बहुत जल्दी वाली बात पकड़ लूँगा कि आपने अपनी पूरी रेज्यूमे ChatGPT से लिखवाई है. Yeah. सही है. इफ़ यू आर एन एंट्री लेवल पर्सन, डोंट ChatGPT, पुट योर ओरिजिनल थॉट्स इनटू इट. यूज़ द हेल्प ऑफ ChatGPT टू राइट समथिंग, Yeah. बट यूज़ योर ओन वर्ड्स, यूज़ योर ओन आइडियोलॉजी टू डू थिंग्स. सही है. इट मैटर्स अ लॉट. अ ह्यूमन टच मैटर्स अ लॉट. अ ह्यूमन अंडरस्टैंड्स दैट लैंग्वेज कि भाई ये रेज्यूमे मुझसे बात कर रही है. Mm-hmm. सेकेंडली, मैंने जो बहुत ज़्यादा चीज़ नोट की है वो ये है कि नाउ रिक्रूटर्स डोंट जस्ट लुक एट योर रेज्यूमे, दे लुक एट योर लिंक्डइन, दे ट्राई टू फाइंड यू ऑन योर सोशल्स एज वेल. Correct. दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी यू आर. Yeah. नाउ इट्स अ वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन, बहुत भरा हुआ कॉम्पिटिशन, इतना ज़्यादा कि यू नीड टू मेक योर सेल्फ अ प्लेस टू स्टैंड आउट. तो इफ़ दैट्स द केस, then be that one person who is standing out, जो नज़र आए फ़ौरन से. अगर मैं आपसे एक मिसाल के तौर पे एक चीज़ पूछूं, do you have someone in mind when you started your career and you saw them grow probably on LinkedIn anywhere, so you would actually have that one name जिसने एक्चुअल में ग्रो किया होगा, and you would have kept an eye. इसका मतलब ये है कि अगर आप एज एन इंडिविजुअल किसी पे नज़र रख रहे थे,
तो रिक्रूटर्स तो वो चील की तरह बैठे हुए होते हैं, दे वांट गुड टैलेंट, दे वांट ग्रेट टैलेंट फॉर द कंपनी, समझ रहे? तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू लुक। आई वुड, मैं तो व्हेन आई वाज अ टैलेंट रिक्रूटर आई वुड कीप माय आई जो हमारे इर्द गिर्द स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर ऑल लुकिंग फॉर ग्रेट टैलेंट ना। अब किसी बंदे ने कितना काम किया, किस तरह किया, किस तरीके से काम कर रहे थे, क्या था, वी वुड टेक रेफरेंसेज, अंडरस्टैंड देयर वर्क एंड एवरीथिंग, वो किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो a lot of research now goes into play, क्योंकि when you're hiring a resource, तो now understand it from my perspective, Mm-hmm. कंपनी पैसे लगा रही है, Yeah. they want to hire you not because you are too good, because the kind of work that you do around yourself, वो उसका क्या अच्छा रिटर्न है, कितना आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट से कंपनी को कितना फायदा होगा, Value You- पहले की आ रही है। मतलब आपको एक रियलिटी चेक अपना देखना पड़ेगा। Hmm. एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट, जब हम इंटरव्यूज तक पहुंचते हैं, ठीक है, आई हैड मल्टीपल इंस्टेंसेस वेयर दे वुड, बिकॉज दे वुड अप्लाई टू 25-50 प्लेसेस एट वंस। अब उनसे बोल रहे हैं जी हम, मैं सादा पे से बात कर रहा हूँ, देर लाइक व्हाट सादा पे, हाँ, उन्हें याद ही नहीं रहता, समझ। याद ही नहीं रहता। तो दैट टू हैपेंस। तो आई मेड दिस अ प्रैक्टिस फॉर माई सेल्फ कि जब मैंने अप्लाई किया था, मुझे तो सादा पे के बारे में सब पता था। मैं तो ये भी बता सकता था कि जी ब्लॉग्स कितने आपने पोस्ट किए हैं, आपके फॉलोअर्स कितने, आपके लिंक्डइन पे फॉलोअर्स कितने हैं, आपके कितने लोग हायर्ड हैं। आई वॉज सो obsessed टू द पॉइंट, आई वॉज लाइक कि मतलब यूर जस्ट, मतलब इट्स योर फॉल्ट यू आर नॉट हायरिंग मी, मैं उस पॉइंट पर था। Nice. So, but it's just a joke then again. Mhm. But the point is कि अगर आपने कहीं काम करना है, एक्चुअल में काम करना है, देन बी पैशनेट अबाउट। वो पैशन आपकी आवाज़ में, आपकी टोन में बहुत जल्दी मैं तो लम्हों में पकड़ लेता हूँ कि भाई आप एक्चुअल में पैशनेट हैं या आप सिर्फ हवा में बस ऐसी एक बात कर रहे हैं। You need to be very cautious of all of I think adding to that, Zaid, also like from a manager's perspective, let's say, at least अभी तक जहाँ भी मैंने काम किया है, there is always this sort of thing कि I want to know कि यार इसको बेसिक लेवल भी पता है प्रोडक्ट का कि नहीं, कि ये ऐप का यूज़र भी है कि नहीं। मुझे याद है कि आई यूज़ टू लिटरली, जब कॉन्वर्सेशन चल रही होती थी कैंडिडेट से या उससे पहले, मैं उसको पहले हमारे इंटरनल टूल पे सर्च करता था कि ये हमारा यूज़र है, इसने कितनी ट्रांजैक्शन की है, वो जस्ट बिकॉज, नॉट बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज इंटरेस्टेड टू नो हिज पर्सनल डिटेल्स और वट एवर, बट इट वाज जस्ट बिकॉज आई वांट टू नो, एंड टिल डेट आई वांट टू नो कि हाउ ऑब्सेस्ड ही इज विद द प्रोडक्ट। यू आर product. एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि उसने आके उसी चीज़ पे काम करना है, बेशक वो ऑपरेशंस में हो, फाइनेंस में हो, प्रोडक्ट में हो, कस्टमर एक्सपीरियंस में हो, जहाँ भी हो, बट he is trying, he will or she will eventually move the needle for that product in certain way, right? तो बिल्कुल। ये बिल्कुल, and I see that unfortunately कि product तो दूर की बात, like वो शायद उन्होंने ऐप डाउनलोड भी नहीं की होती बहुत दफ़ा, Very true. and I also see वही आप वाली बात कि बेसिक रिसर्च बहुत ज़्यादा लैक होती है, and हाँ। it shows the intent of the person के how there's इट्स सच अ टर्न ऑफ। मतलब आप ये सोचो कि किसी बंदे को आप हायर कर रहे हो, उसको यही नहीं पता कि जी आपकी कंपनी करती। द बिगेस्ट टर्न ऑफ इज कि भाई अगर आपने अप्लाई किया है, एटलीस्ट लुक एट द कंपनी। बहुत, मैं तो ये करता हूँ, द ईजीएस्ट वे इज़ आप उनकी एक दफ़ा वेबसाइट गो थ्रू कर लें, उनका अबाउट अस सेक्शन देखें, जस्ट ट्राई टू लर्न कि भाई ठीक है आपने अप्लाई कर दिया, जस्ट स्किम एवरीथिंग कि भाई जल्दी जल्दी हमने पढ़ लिया, एटलीस्ट ग्रास्प द कॉन्सेप्ट कि अच्छा ये कंपनी काम ये करती है। दैट्स द ईजीएस्ट थिंग यू कैन डू। करेक्ट, एंड आई थिंक फॉर B2C तो बहुत सिंपल है कि एटलीस्ट आप डाउनलोड करो, यूज़ करो, कस्टमर का पर्सपेक्टिव जानो, बिकॉज कस्टमर का पर्सपेक्टिव रिगार्डलेस ऑफ वेर एवर यू अप्लाई, वो कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू में कहीं ना कहीं वो पूछा जाएगा या वो पकड़ा जाएगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल 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 ऐसी है। एंड या कंटिन्यू। सो ये तो पूरी एक आपकी एक जर्नी हो गई इन टर्म्स ऑफ अ कैंडिडेट। देन एक्सपेरिमेंट अ लॉट, डोंट जस्ट, मतलब फॉर एग्जांपल आई हैव सीन यू वर्क एज वेल एट सादा पे। जब हम सादा पे काम कर रहे थे, वी वर नॉट वर्किंग फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट द जॉय ऑफ वर्किंग। दैट्स तो ट्रू। शुरू के 2-3 सालों में इफ़ यू डू दैट, तो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। आई नो नॉट एवरीवन हैज़ द लिबर्टी टू डू इट, नॉट एवरीवन इज Yeah. प्रिविलेज्ड इनफ, बट I feel like as an individual in today's world, do it for the sake of, for the love of the process, for the love of work। मतलब ये ना बहुत एक इसका मेरे दिमाग में एक आसान सोल्यूशन ये है कि अल्लाह ताला ने आसान सी चीज़ बोली है
focus on the hard work and do that. कि मैं खुद करूँगा. Don't expect results. That is my job. It is not your job. तो फिर हमारा काम बस इतना सा रह जाता है कि हमने मेहनत करनी है. तो जब हमारे पास ऑप्शन ही मेहनत का रह गया है, तो फिर खुल के मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें. रिजल्ट तो वैसे भी अल्लाह नहीं देना है. तो वो ये चीज़ें ना आराम आराम से लेटर ऑन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग. फिर मुझे और था कि यार मतलब money is byproduct, this is title is byproduct, ये वो. It's not like I did not strive for it. I obviously I'm human enough to understand कि भाई मेरी growth होनी चाहिए, मैं चीज़ें सीखता रहूँ. But it all came with hard work, कि आप मेहनत करें जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं उस रोल के लिए, उस चीज़ के लिए. Okay, nice. And one last thing before I move on to the other sort of questions that I have in my mind. Do you think you had life figured out, let's say at 22, 21, I don't know. Basically, when you were graduating, like you said, probably you haven't even completed your degree and whatnot. So, क्योंकि ये एक डर बहुत जेन्युइन है जो रहता है लोगों के उसमें, एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 4th ईयर आपके दिल में शायद ये एंजाइटी सी आना शुरू हो जाती है कि ओ नो, लाइक इट्स गेटिंग रियल. तो उस केस में अब थोड़ा सा आप अपना भी बताओ, एंड देन what do you recommend people do to cope up with that? I think as of even today, I haven't figured it out. And I say that because I feel like you will never figure it out. And I think that's the point. Yeah, exactly. That makes you curious कि यार अगला क्या है. हाँ. And वही वाली बात है कि मैं अपने आप को एक बहुत अच्छी पोजीशन पे देखना चाहता हूँ. जो मैं काम करता हूँ उसमें मैं ग्रो करना चाहता हूँ. तो मेरे लिए फिगर्ड आउट बात ये होगी कि मैं आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग. आई कॉन्स्टेंटली लर्निंग एंड ग्रोइंग. तो मेरा जो सारा नज़रिया ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली सीखना चाहिए चीज़ों को. और देयर इज़ अ डिफरेंस. एक पढ़ाई, एक होता है कि पढ़ना और एक होता है सीखना. व्हेन वी आर इन यूनिवर्सिटी तो हमें ना सिर्फ पढ़ाते हैं कि ये किताब पढ़ लो, ये पढ़ लो, इससे ये कर लो, वो कर लो. बट जो मैंने सबसे पहली बात बोली थी प्रैक्टिकल लर्निंग वाली, दैट इज़ कि मैं सीख रहा हूँ. बेशक किताबों के अंदर फाइनेंसेस यही लिखते हैं, दिखते हैं कि जी ये प्रॉफिट हो गया, सेल हो गई, ये हो गया, वो हो गया. बट इन रियलिटी आप बुक लेके नहीं खड़े हुए, आप एक बहुत फैंसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो जिसमें आपको बहुत सारे काम आप करने भी नहीं पड़ते. यू नीड टू अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फाउंडेशन कि ये सॉफ्टवेयर किस फाउंडेशन पे काम करता है, या किसी भी काम में. तो द स्पिरिट ऑफ लर्निंग हैज़ टू बी देयर कि जी हम सीखते रहें, पहली चीज़. आई थिंक दूसरी चीज़ वुड बी कि जब तक आप करोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने फिगर आउट कर लिया. अभी एज ऑफ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट उसने तो कुछ किया ही नहीं. उसने तो बिजनेस नहीं देखा, उसने ये नहीं सीखा कि भाई कारोबार कैसे होता है, बिजनेस कैसे होता है, स्टार्टअप्स कैसे होते हैं. अब तो इतनी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं फॉर अ स्टार्टअप. कोई मीडिया एजेंसी चलाता है, कोई फ्रीलांसिंग बिजनेस करता है, कोई रिक्रूटमेंट बिजनेस कर रहा है. देयर सो मेनी थिंग्स विद AI दैट यू कैन डू. तो यू नीड टू सिट डाउन, राइट इट डाउन फॉर योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड कि भाई ये काम करना है, ऐसे करेंगे. मैप इट आउट. आई नो इट्स अ वेरी ओल्ड स्कूल वे. इफ यू कैन डू इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, डू इट विद योर iPad. Do it digitally, but do it, write it somewhere. It does work out. It does help you out in that intent of working. तो फिगर आउट एक्सपेरिमेंटल से ही होता है. तो मैंने तो ये सीखा है कि मैं कस्टमर एक्सपीरियंस एसोसिएट भी रहा हूँ, मैं टैलेंट में भी रहा हूँ, और मैं अब प्रोडक्ट मैनेजर बन गया हूँ. तो इवन टुडे आई एम ऑल इन द लर्निंग प्रोसेस. All right. I think it's very important what you said. Curiosity should remain till the end. Varna phir you just get bored of what you do, right? And that boredom will start to kill you. So yeah, that's true. Acha, Zaid, one thing that I am particularly
very fond of and also very impressed by you also is the fact, and I think आजकल के ज़माने में that sort of helps getting a job also, like you said, from a talent recruiter's point of view, is the personal branding aspect. Yes, आपने उस पर yes, भी बहुत काम किया है. आई वुड रियली yes. वांट कि आप ब्रीफली थोड़ा सा बताओ कि पर्सनल ब्रांडिंग आपने किस तरह की एंड व्हाई डिड यू चूज अ सर्टेन नीश एंड हाउ डिड दैट हेल्प यू लैंड वेयर यू आर टुडे, एंड देन वी कैन मूव द कन्वर्सेशन ओवर देयर. Sure. So when I joined Sadape, one of the key things that I pitched in was that I'm famous on Instagram. I had about 17,000 followers at the time, and I was making content. I enjoy making content. This is something that I do for myself. मुझे बड़ा मज़ा आता है जी videos बना के. I share my experiences with the world, and to that I was also making religious content, and it was the sort of content जो कि would resonate with everyone, जो कि इट्स बेसिकली लर्निंग्स फ्रॉम द कुरान, कि जी मैंने जो चीज़ सीखी और मेरी सीख क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ. दिस इज़ माई परस्पेक्टिव एंड आई वुड लव टू शेयर इट विद यू गाइज. बट इट वॉजेंट वेरी bound to just that. I was making ACCA content, I was making all sorts of content, और उस चीज़ ने मुझे हेल्प आउट इसलिए किया था क्योंकि I started becoming more confident on camera, started becoming more aware of talking to people and being putting myself out there. तो वो चीज़ ने मुझे फिर और ज़्यादा empower किया to keep on sharing my experiences, be it on Instagram, be it on LinkedIn. Although थोड़ी सी strategy different होती है, but obviously the idea is to put yourself out there and share your experiences. जो personal branding that I do today is in PSX, completely different. And जब हम उस वाले part पे आएंगे तो I'll tell you how Yeah. I became a product manager to that point as well. But then again, for example, मिसाल के तौर पे कि एक बच्चा है जो कि BBA के अंदर है, या BBS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर है, तो जी जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, find a medium to even for example, I used to teach kids, ACCA kids back in the day. तो उनको पढ़ाने के लिए मुझे खुद सीखना पड़ता था. True. तो उसके लिए मैं अपनी लर्निंग करता था, एक्स्ट्रा लर्निंग करता था ताकि मैं उनको समझा सकूं. डू द सेम फॉर योर सेल्फ. थिंक ऑफ सोशल मीडिया एज योर ऑडियंस, एज योर स्टूडेंट्स, एंड यू आर द टीचर. अब आप बताएं, आपने मुझे BS अकाउंटिंग फाइनेंस का एक टॉपिक समझाना है, लेट्स से कैश फ्लो समझाना है या बैलेंस शीट समझानी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझानी है. हाउ वुड यू डू दैट? सही है. You need to begin somewhere. मतलब it's that's the easiest way. If you want to be out there in the world, to be known by people, to be someone जिसको job आसानी से मिल जाए, to be in the eyes of the recruiter, you will have to put yourself out there. In the couple of more years, जितने ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे नज़र आएंगे उनको जॉब्स मिलेंगी, जो नहीं नज़र आएंगे they will be gone. Okay, so probably मतलब अब तुम ये बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग, इट्स माइंड बॉगलिंग टू मी इन द सेंस के the competition is so much कि probably you have to start 3 years earlier हाँ, absolutely. on that. But I mean it's a bit like it's a bit conflicting because शायद मेरे टाइम पे 6 years ago वो चीज़ नहीं थी. बिल्कुल. तो I can't even wrap my head around कि यार मैं अपने first year या second year में ये इन चीज़ों पे focus कर रहा हूँगा. But I guess times have changed a lot. Absolutely. And I you think have to- even if you look at it today, the product managers जब आप 6 साल पहले थे तो look at their sort of work and look at yourself when you are standing today. तो आपके काम में उनके काम, so things are changing yeah. and change is the only constant. तो फिर जब ये वाली चीज़ है then be in that Adapt zone. to it like There you go. Okay. Very simple. Okay. And there is nothing wrong with, for example, मैंने बहुत लोगों से ये सुना है when it comes to personal branding कि एक specific niche पकड़ें. क्यों पकड़ें? मुझे एक चीज़ का पता ही नहीं है. Nice. but don't, why are you limiting yourself? Don't limit yourself. आप experiment करोगे तो पता चलेगा. एक That's एग्जाम्पल जो है, जैसे हमजा भट्टी की अगर एग्जाम्पल लेते हैं, started with food content but he was doing content before, then he changed travel, this, that. Do that for yourself. आप experiment so true because in that journey you discover yourself and you discover के and you get feedback from let's say users हो गया या audience हो गया, Audience हो गया, बिल्कुल. comment करते हैं, critique करते हैं. That's so true. So okay, tell me a bit about like your journey of personal investments and PSX और जो भी अभी आप सारा mention किया है आपने, was that something again you were obsessed about since the start?
एंड ऑल्सो मुझे ये लगता है कि फॉर द पीपल टुडे एंड फॉर द पीपल ग्रेजुएटिंग और जनरली आई थिंक इवन व्हेन आई ग्रेजुएटेड दिस वाज समथिंग दैट वाज रियली ऑन द टॉप ऑफ माय हेड. मुझे जॉब वगैरह का इतना वो नहीं था, बट मुझे ये था कि जो भी मुझे थोड़ा बहुत पैसा मैं कमाऊं या आए उसको खर्च कैसे करना है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह टिल डेट आई हैव सर्टेन रूल्स एंड व्हाट नॉट. बट what is your thought on this, and what do you recommend people start doing, या at least कहीं से जब जिस तरह I see in a lot of your videos you say कि कहीं से तो start लेना and what not. हाँ. So walk us a bit about do that. So I will try to keep it short. Yeah. But it wouldn't be. I made my very first investment when I was 19, and I made that in mutual funds. I had just turned 19, और आई वुड गो टू द बैंक वेरी ऑफ्टन. मीज़ान बैंक में मेरा अकाउंट था और मैं वहाँ पे रोज़ाना तकरीबन हफ्ते में 2-3 दिन चला जाता था. जिस बंदे ने मेरा अकाउंट खोला था मैंने उससे दोस्ती कर ली थी. तो मैं उससे ना बैंक के बारे में सीखता रहता था कि ये बैंक कैसे काम करता है, क्या होता है, कितने कस्टमर्स आते हैं, क्या मतलब ऐसी जस्ट टू अंडरस्टैंड. मैं वैसे भी ए लेवल्स कर रहा था तो नंबर्स वगैरह वैसे ही अच्छे लगते थे. मुझे था यार बैंक के नंबर्स तो बड़े मज़ेदार भी होते होंगे. तो आई वॉज जस्ट वेरी क्यूरियस टू नो. एक दिन जो मेरा दोस्त था उसके पीछे एक टेबल लगा हुआ था, तो उस पर एक बंदा था, उसने म्यूचुअल फंड्स का ऐसे कोई जिक्र किया. वहाँ पे कुछ कस्टमर्स बैठे हुए थे, उन्होंने बोला जी ये अकाउंट खोल दें, इसमें इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दें, अब वो अच्छा है साल के बाद इतने बनेंगे. तो आई वॉज वेरी क्यूरियस. मैंने बोला यार ये क्या स्कीम है. तो मैंने उसी से बोला कि यार मतलब बताओ हेल्प क्या रहा है. तो ही वाज लाइक यार ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, आप पैसे डाल सकते हो. तो मैंने बोला अच्छा मेरी बात करवाओ इस बंदे से. तो मैं अपनी टेबल टर्न करके उस बंदे के पास बैठा. तो मैंने उससे समझा कि क्या होता है. उस टाइम पे इतना समझ में नहीं आया कि क्या होता है. मैंने उससे पूछा कितने पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं. ही वाज लाइक 5,000. मैंने बोला ये लो 5,000 बिगिन, हाउ डू आई स्टार्ट. तो वो पैसे मैंने लगा दिए. दैट वाज माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट. अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट अकाउंट था वो, और एक म्यूचुअल फंड था, उसमें मैंने पैसे लगाए. एंड देन शुरू में मैं काफ़ी वो था, क्यूरियस था काफ़ी. तो मैं रोज़ उठ के देखता रहता था. वो ऐप थी, ऐप में देख लिया अच्छे पैसे 5,000, 100 हो गए, 200 हो गए. मैंने बोला 100 200 चलो ठीक है लगे रहे. साल बाद मैंने कुछ खोला अकाउंट ना, तो मैंने देखा वो 8,000 हो गए. बोला यार ये तो बड़ी मज़े की स्कीम है. तो 5,000 लगाए, 8 हो गए. मैंने 8 निकाल लिए. तो मुझे वो दैट वाज माय वेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट. तो आई वाज लाइक कि यार ये चीज़ें सीखनी, ये बहुत मज़े का है. देन स्टॉक्स के बारे में मैं बहुत रिसर्च करता रहा एक्सटेंसिवली उसके बाद. एंड व्हेन आई टर्न 22, तो मेरी हमेशा से एक ये चीज़ रही है कि आई गिफ्ट माई सेल्फ ऑन बर्थडेज. मैं अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए कुछ ना. आई वाज लाइक जैद हसन इस साल मैंने अपने आप को शेयर्स गिफ्ट करने हैं. Nice. तो नाउ डू समथिंग फॉर इट. तो मैंने एक अकाउंट खुलवाया. उस टाइम पे जो है ब्रोकरेज के अंदर अकाउंट खुलवाना बहुत मुश्किल था. तो आई फाउंड दिस वन ब्रोकरेज विच मेड इट अ लॉट ईजियर टू बिगिन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस. और 2 साल बाद भी तकरीबन 5,000 से अकाउंट खुल रहा था. आई वाज लाइक 5,000 ये से खुल जाना चाहिए अकाउंट. आई वाज लाइक ठीक है सही है. उस टाइम पे अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बहुत मुश्किल था. तो आई वाज लाइक बस जैसे तैसे करके भी बस मेरा अकाउंट खुल जाए, उसके बाद देखी जाएगी. तो आई गॉट माई सेल्फ एन आसान अकाउंट. तो उससे ये होता है, इसको हम सहूलत अकाउंट कह सकते हैं, विच हैड अ लिमिट. एट दैट टाइम इट वाज 800,000. मतलब 800,000 तक पहुंचने में तो बहुत टाइम लगेगा. तो वो कर लेते हैं. फनी इनफ आई हैड फेल्ड वन ऑफ माई ACC एग्ज़ाम, और मैं बड़ा उदास था. मैंने अम्मी को बोला अम्मी पेपर फेल हो गया, मैंने नहीं री अटैम्प्ट करना ये वो. अम्मी ने मुझे बड़ा वो समझाया कि नहीं कोई मसला नहीं है, फेलियर्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. तो आप मुझसे ये पैसे ले लें और आप फिर से अपीयर करें. अच्छा मुझे ये था कि यार मैं क्या करूं, पढ़ाई भी सही नहीं हो रही है, फोकस नहीं हो रहा, ये नहीं. मैंने वो 18,000 कुछ थे, मैंने उठा के स्टॉक्स में डाल दिए. और वो मेरी पहली इन्वेस्टमेंट थी स्टॉक्स में. और मुझे एक ट्रेडर मिला, उसने मुझे बोला जी ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसमें आप सारे पैसे लगा दें. मैंने बोला यार देख लो वो 18,000 है. बोलते 18,000 तो कुछ भी नहीं है. मुझे थोड़ी ऑफ भी लगी बात, लेकिन मैंने बोला 18,000 ही है, लेट्स सी. वो मैंने इन्वेस्ट कर दिए. तो वो जो पहली इन्वेस्टमेंट की उस टाइम पे उसका शेयर प्राइस था 76 रुपीज़ का. दिस वाज बैक इन 2022.
और वो 76 रुपीज़ का था। और मैंने फुल अपनी लॉजिक लगाई, मैंने बोला फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कोविड का टाइम है, लोगों की तबीयत ख़राब है, मेडिसिन लोग ले, ये मैं फुल इकोनॉमिक्स लगा के बैठा हुआ था मैं अपनी। वो 76 से 70 पे 75 आया। अगले दिन मैंने फिर खोल, अब मेरे ना स्टेक्स बहुत हाई थे। या मुझे ये था कि ये पैसे, ये तो पेपर के पैसे हैं ये। 76 से नीचे जाते जाते 70 पे चला गया। मैंने बोला या अल्लाह, ये तो गिरते जा रहे हैं पैसे। तो मैं, और वो और गिरते गिरते 65 पे आए। मुझे एक दौरा तो पड़ा, मैंने 65 पे मैंने आधा सेल कर दिया, जितने मतलब मैं, मुझे ये था कि आधे पैसे तो निकले। फिर वो मैं रोज़ देखता रहा। अब वो थोड़े से पैसे 18,000 में से 9 निकल आए, 9 भी नहीं निकले, 7 निकले और बाकी लगे रहे। वो गिरते 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 तकरीबन जो है वो 50 पे आ गया। मैंने बोला अल्लाह ताला, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैंने 50 पे सारा सेल आउट किया। और मेरे पास हाथ में आए कोई 13 साढ़े 13 हज़ार रुपये। एंड आई वाज लाइक ब्रो, ये अम्मी को मैं क्या बोलूँगा, क्या कहूँगा मैं। और मुझे ये था कि यार ये तो बहुत बैड सीन है, ये तो नहीं, ये तो दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। और फिर मैंने सोचा यार मैं सॉरी, मैंने सोचा मैं तो ACCA कर रहा हूँ, पैसे तो बनाने पड़ेंगे। ये 18 तो वापस चाहिए, उसके ऊपर मिल जाए तो अच्छी बात है। उस टाइम पे आई मेड अ मॉडल फॉर माई सेल्फ, जो कि आज लोग जिसको सिप मॉडल कहते हैं। तो आई डिड दैट व्हेन नो वन न्यू अबाउट इट। आई वाज लाइक, मैं काम करता हूँ, हर महीने 5,000 रुपये डालूंगा, सही है, आई विल मेक दिस मनी समहाउ। मैं 5,000 रुपये डालता रहूँगा, ये बढ़ते जाएंगे। और मैं ये करता था कि आई वुड ट्रेड, मतलब क्योंकि उस टाइम तक इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं समझ में आता था। तो मैं ये करता था, कोई शेयर अभी इतने पे है और 10-20 रुपये, मतलब मेरे दिमाग में था शेयर की प्राइस होनी चाहिए 50 रुपये से कम, और प्रॉफिट 500,000 हो जाए तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना है आपने, निकाल लो फिर बस निकाल लो बस। तो मैंने आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड आई किड यू नॉट, एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने जब बैठ के हिसाब लगाया, आई वाज 20K प्रॉफिट, मतलब ऑल्सो रिकवरिंग पेपर के लॉस। उसके अलावा भी 18,000 का 38,000 बेसिकली। यस। नाइस नाइस। एंड दिस वाज, एंड देन आई मतलब रियलाइज्ड कि मैंने बोला यार ये तो इतनी मज़े की चीज़ है कि मतलब आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ मार्केट। मैं तो बस लगाता हूँ और आई वेट अंटिल कि ये 500,000 रुपये ऊपर चले जाए, 1,500 रुपये ऊपर चले जाए, एंड देन आई सेल इट। एंड देन वो ऑब्सेशन बढ़ता गया, क्योंकि पैसे बनते हुए नज़र आ रहे थे ना। तो आई वाज लाइक यार कितनी मज़े की चीज़ है। एंड I have this thing, I never do anything for just myself. I like building people along, मतलब building community. मैंने अपने दोस्तों को बताना शुरू किया, मतलब bro, I have been doing this, do this. They're like, नहीं हम क्रिप्टो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। And every crypto guy, every crypto person that I met, they were like, but मेरे तो लाख रुपए बन गए थे। मैंने बोला कहाँ है? बोलते वो लॉस भी हो गया था। फिर यार ये क्या। एंड देन वो मुझे तो रिजल्ट नज़र आता था, मुझे होता था मैंने लगाए, बना लिए पैसे अपने, तो वो मुझे एक रिजल्ट नज़र आता था। आई वुड कीप ऑन प्रीचिंग पीपल एंड दे वुड नॉट लिसन टू मी एट द टाइम। एंड आई एम टेलिंग व्हेन द इंडेक्स मार्केट, क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हैं, आई नो, उस टाइम पे 38,000 इंडेक्स पॉइंट पे थी एंड दे वर ओनली अबाउट 150,000 यूज़र्स। आज 6 लाख यूज़र हैं, 600,000 यूज़र्स हैं, और मार्केट इज़ एट 178,000 पॉइंट्स। तो आप देखें मार्केट हैज़ मल्टीप्लाइड 4 times in itself. 6 times actually. 6 times, हाँ हाँ। 5-6. And funny enough, I had Mizan Bank at 98 rupees and I sold it at 108. And people who are listening to this, they would understand. दुख भरी कहानियां ना सुनाओ, मैंने बहुत महंगे खरीदे हैं ये सारे। तो देन अगेन बड़े, तो आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ दिस। तो फिर मैंने अपना मॉडल नहीं छोड़ा। आई वॉज लाइक, मैं इस साल 5 लगा रहा हूँ, अगले साल 10 लगाने शुरू किए, फिर 15 लगाने शुरू किए, फिर 20 एवरी सिंगल मंथ। तो वो सिप मॉडल मैं फॉलो करता गया। और उसमें इट वाजंट जस्ट हाइज एंड हाइज, इट वाज देयर वर लोज एज वेल। मैंने कहीं जगहों पे लॉस भी किया, कहीं जगहों पे दूसरे वाला आई कैंट हियर यू वैसे। या गो अहेड। तो मतलब उसमें बड़े मल्टीपल एक्सपीरियंसेस थे, बट इट वाज फन एंड गेम्स एंड मनी एज वेल। मेरा एक ट्रिप था लाहौर का, और वो मैंने पूरा खर्चा वर्चा किया वहाँ पे स्प्लिट वाइज पे ना, 22,500 कुछ बना। मेरे एक प्रॉफिट 25,000 था, तो मैं बड़ा हैप्पी था। मैंने ये सेल करेंगे। इट्स वेरी ट्रू बिकॉज यू आर थिंकिंग अराउंड एक्सपेंसेस चेंजेस। मैं उस दिन किसी को भी यही बात बता रहा था कि
मैं अब फलानी चीज़ को एज एन एक्सपेंस नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है कि ये मैंने फलानी जगह से कवर कर लेना है, फलानी जगह. It's Yes. all about building that system, I guess. Yes. Yes. So, Yes. so I would want you to sort of, चलो फाइनेंशियल एडवाइस वो कहते तो है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट थोड़ा बहुत आइडिया दे दो कि हाउ कैन समवन स्टार्ट टू एटलीस्ट एक्सप्लोरिंग व्हाट सिस्टम वर्क्स फॉर देम फाइनेंशियली. बिकॉज आई नो, मैंने ये खुद अनफॉर्चुनेटली देखा while working with young people, of let's say younger generation या अपनी generation या whatever you can say, people unfortunately जैसे ही पैसा आता है हफ्ते बाद वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल. हमने रीनास जाना है, हमने फलानी जगह जाना है, हमने यहाँ से खाना खाना है, यहाँ से कॉफ़ी पीनी है. तो विच ठीक है, मतलब पैसे आप इसलिए कमाते हो, आई अंडरस्टैंड, बट यू नो मेरे ख्याल से 5 years down the line they might end up regretting this, unfortunately. Yes. तो Yes. उसका क्या तरीका है to, let's say, build that system according to you? So मैंने अपना जो प्रोसेस बनाया हुआ था, या मैंने अपना जो सिस्टम बनाया था, I'll share that with you guys and everyone listening. इधर So मैं ये करता हूँ हमेशा कि whenever my source of income lands into my account, the first thing that I do, सबसे पहली चीज़, before paying any rent, expenses, electricity, anything, the first thing that I do is I put aside my SIP amount into my Okay. brokerage account. The first thing. So basically, I create a new disposable income for myself. For example, मिसाल के तौर पे anyone listening, let's say आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है. 1 लाख रुपए में से मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि मैं 10,000 रुपये उठा के अपने इन्वेस्टमेंट के डाल दूंगा. फिर मेरे पास बच गए 90,000. अब मैंने जो भी एक्सपेंसेस करने हैं ना, वो मैंने 90 में करने हैं. While people do the opposite. वो ये करते हैं कि वो पहले सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं जी, जो एंड पे बच गया तो वो लगाते हैं. उसका जो सिर्फ एक ड्रॉबैक है वो ये है, फॉर एग्जांपल, कि जब आपके एक्सपेंसेस कभी कम नहीं होते. लिविंग इन पाकिस्तान दैट इज़ वेरी हार्ड. बहुत वेरिएबल होते हैं एक्सपेंसेस आपके. कभी ट्रांसपोर्ट पे बढ़ गया, कभी इलेक्ट्रिसिटी पे बढ़ गया, किसी भी चीज़ पे बढ़ सकता है. जब आप वो माइनस करते करते जब आप एंड पे पहुंचते हैं ना, तो आप मंथ एंड पे भी खड़े हुए होते हैं. तो फिर आप ना बहुत कंफ्यूज स्टेट में होते हैं कि यार ये मैं पैसे लगाऊं नहीं लगाऊं, मुझे अभी कैश चाहिए होगा, ये वो. यू स्किप अ मंथ एंड योर सिस्टम इज गॉन. मतलब you've destroyed your circle. और डिसिप्लिन भी मतलब खत्म हो गया, फिर खत्म हो गया बिल्कुल. तो मैंने ये किया था कि मैं ये मॉडल फॉलो करता हूँ कि जितनी मेरी सैलरी है उसका सबसे पहला काम यह है कि जी इन्वेस्टमेंट पहले कितनी होगी. इन्वेस्टमेंट हो गई, अब बताएं जी एक्सपेंसेस क्या do क्या है. you curious to know, do you like have a percentage set या एक amount set है कि यार इतनी हर, या वेरी करती है वो? वेरी करती है. पहले बहुत सेट थी. पहले 5,000, 10,000, 15,000 तक तो मैं बहुत कंसिस्टेंट था. मुझे था दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये पैसे जो है ये लगेंगे. बल्कि मैंने एक दफ़ा ये किया कि क्या बोलते हैं, एक कमेटी डाल ली. अच्छा. मैंने बोला यार मुझसे पैसे जमा नहीं हो रहे, तो मैंने द फ्लो ऑफ मनी यू नीड टू अंडरस्टैंड. मैं फ्लो ऑफ मनी में बहुत अच्छा हूँ. मुझे ये था आई नीड, तो इवन फॉर यू, अगर आपके पीछे पुलिस बैठी हुई हो ना ये देखने के लिए कि यार ये आप पैसे जमा कर रहे हो, फिर मैं भी देखता हूँ आप कैसे नहीं जमा करोगे. तो मैंने एक ऐप डाउनलोड की, इट्स कॉल्ड उड़ान. उड़ान इज़ अ कमेटी ऐप, और मैंने उसमें कमेटी डाल ली 5 महीने की, और मैंने पे आउट मंथ रखा 5 महीने का कि जी सबसे एंड पे दीजिएगा मुझे. मैं हर महीने पैसे डालता रहा. वो 5,000 की डाली थी, 5 महीने में 25,000 है. 25,000 अकाउंट में लैंड किए, सीधा मैंने इन्वेस्टमेंट में डाल दिया. अब मैं सिक्योर हूँ मेंटली कि मैंने 5,000 रुपये जो सेव करने थे वो मैंने सेव भी कर लिए और उठा के डाल भी दिए. तो अब फॉर एग्जांपल मुझे उस टाइम पे ये था कि यार मैं सेविंग नहीं कर रहा, लेकिन देयर वाज एन ऐप जो कि मुझे हर मंथ के शुरू में जैसी मेरी सैलरी आती थी अराउंड दैट टाइम वो बोलते थे जी पैसे. तो वो मैंने अपने आप को ना खुद फंसाया कि जी नहीं ये काम करना है, किसी भी हालत में ये करना है. तो देयर आर मल्टीपल वेज. द रीज़न आई टेल यू कि सबसे पहली ट्रांजैक्शन इज शुड बी इन योर it has to be in your brokerage account or mutual fund anywhere, that is, ताकि एक दफ़ा वो पैसे चले गए ना. अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, साइकोलॉजी समझाता हूँ. आपने लेट्स से सबसे पहली ट्रांजैक्शन की किसी शेयर के अंदर, ठीक है, आपने पहली सैलरी के अंदर से कुछ भी अमाउंट निकाल के आपने डाल दिया. अब उस अमाउंट का अब आपने शेयर्स खरीद लिए. अब जब आपको पैसों की ज़रूरत होगी ना, यू विल थिंक 3 times. यू विल बी लाइक यार ये मैंने पैसे लेट्स से 10,000 के लिए थे, इस टाइम पे 12,000 के हैं, इतनी भी ज़रूरत नहीं है,
मैं इसको बेच के निकालूं 2-3 दिन लगेंगे, हालांकि इतना टाइम भी नहीं होता, 2 दिन में तो वैसे फ्रिक्शन क्रिएट हो जाए. फ्रिक्शन क्रिएट होती है. Yeah. तो मुझे ये था 2 दिन का फ्रिक्शन क्रिएट होगा ना, आई विल क्वेश्चन माई एक्सपेंस Yeah. कि जी ये करना चाहिए कि नहीं. Hmm. एंड दैट इज हाउ द फ्लो ऑफ मनी शुड बी. एक्सपेंस करने से पहले हम बिल्कुल नहीं सोचते, Hmm. इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम 1000 दफा सोचते हैं कि जी ये करना है कि नहीं करना. And I think जो इन्वेस्टमेंट एप्स हैं, probably you can comment on that better, वो भी इसी साइकोलॉजी से करती हैं कि भाई डिपॉजिट शुड बी इंस्टेंट, विड्रॉल आहिस्ता से करो, हाँ ताकि हाँ, वो दो वही अगेन प्लेइंग विद द कंज्यूमर साइकोलॉजी. बिल्कुल ऐसे ही है. एंड इट एक्चुअली वर्क्स एंड इट इज सपोज टू बी दिस वे या कि जी देखें, ओके व्हाट हैव बीन द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स अराउंड अस. ठीक है, अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, हम किसी भी लेट्स से हम किसी रियल एस्टेट की बात कर लें, लिक्विडिटी सबसे कम है उसके अंदर. हम स्टॉक्स की बात करें, 2 दिन की लिक्विडिटी, विद इन 2 days यू हैव द कैश इन योर हैंड. आप उसी की जगह पे और कोई भी इन्वेस्टमेंट देख लें, सबसे क्विक लिक्विडिटी आपको स्टॉक्स में मिलती है. ठीक है, रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं. देन व्हाई आरंट वी डूइंग इट? So I was gonna come to that question next. Instrument of investment, does that matter? Like bonds है, crypto है, stocks है, whatever. या फिर you say कि बस करके देखो, घुसो at least. What do you sort of have an opinion on? So I say कि get into stocks and not any other thing. I say if you are 20-25 years old, get into stock exchange. सही. There is no harm in it. हमारी पॉपुलेशन का 0.02% इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स के अंदर. यूएस के अंदर अराउंड 60% ऑफ देयर पॉपुलेशन डज. इंडिया में अराउंड 28-30% ऑफ देयर पॉपुलेशन इन्वेस्ट. तो हमारे पास तो इतना सारा मार्जिन है इन्वेस्ट करने के लिए. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग ये है कि these are actual businesses. Yeah. सही है. and crypto isn't legal yet. ठीक है. So अब हर बंदे को ये है कि हमने so you know the reason why people go into crypto is because they want quick money. Yes. I don't want quick. Yeah. हाँ, I don't want quick money. I have trained my brain to understand कि the quicker the money gets into your pocket, the quicker it goes out of your pocket. And by the way, these exchanges, like let's talk about PSX for example. मुझे बहुत लेट आके पता लगा, because I was also somebody who used to invest crypto में, वो यार I forgot the term, बहरहाल spot trading में हाँ हाँ हाँ. But when I went into like PSX में investment, फिर मुझे सबसे ज़्यादा surprising बात ये लगी कि यार इनका तो फ्लोर और रूफ जो है वो 10% पे सेट हुआ है ऑलरेडी. हाँ 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 हाँ, बिल्कुल. By nature, I think these equities and these stock exchanges, I think not just Pakistan but across the world also, they are designed like this, I guess. हाँ हाँ, मतलब you can't lose all your money in one trade. Yeah. मतलब फॉर एग्जांपल आपने ₹1,00,000 लगाए हैं, तो ₹1,00,000 के 10% जो है वो तकरीबन 10,000 तो आज के दिन में या तो 10,000 ऊपर बनेंगे या 90,000 पे चले जाएंगे. सही. इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सही सही सही. तो वो For me, मैं आपको honestly बताऊं, if you ask me from a consumer's perspective, back in 2024, I opened a brokerage account. मुझे जब ये पता लगा, अब कमिंग फ्रॉम एन ऐप, अ क्रिप्टो ऐप जहाँ पे एवरीथिंग वाज विद माय कंट्रोल, राइट, एंड देन बाद में पता चला कि यार मुझे ब्रोकर को कॉल करनी है, उसको कहना है एग्जीक्यूट करो, उसको कहना है सेल करो, बाय करो, और वो अगले दिन होगा. फिर मुझे मैसेज, देयर वाज सो मेनी फ्रिक्शंस कि आई डिसाइडेड कि मतलब जो चीज़ मुझे नज़र ही नहीं आ रही, जो चीज़ मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही, आई कांट कीप अ ट्रैक ऑफ इट, व्हाई एम आई इन्वेस्टेड इन इट. फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे स्टॉक्स खरीदे थे, बड़े अच्छे टाइम पे खरीदे थे, फिर मैंने बंद कर दिया. एंड देन when these apps sort of started to come in with the likes of, let's say, Fincalab and K-Trade and other Nafa also very recently and Yes. whatnot. So things became a lot easier. So I guess in today's time ये चीज़ें तो शायद जो 5 साल पहले थी वो तो आज बहुत आसान हो गई हैं. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है. आई थिंक जब मैंने अकाउंट बनाया था तो मैंने तो सारे डॉक्यूमेंटेशन अपनी एक व्हाट्सएप चैट के ऊपर भेजा था, एंड आई वाज लाइक शुक टू माय कोर के भाई, मतलब ये मेरे CNIC भी उस पर चला गया, बैंक स्टेटमेंट भी मंगवा ली, सब कुछ, होम एड्रेस, यूटिलिटी बिल्स एंड एवरीथिंग. तो आई वाज लाइक यार ये क्या सीन है, मतलब
But now with one of our, I work at Chase, so Nafa being one of our partners on board. तो उनका ये है कि देव स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस एंड बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन किया हुआ है कि सारा प्रोसेस इज़ ऑन द ऐप इन इटसेल्फ, या फिर और बहुत अब तो एक क्या बोलते हैं, बेहतरीन पोर्टल है आसान कनेक्ट के नाम से, CGP पोर्टल, एंड इट्स अमेजिंग। आप खुद ही जाएं, सारा अपना डिजिटलाइज प्रोसेस आप उसको फॉलो करें, अपने मतलब का आप ब्रोकर चूज़ करें, आइडियली चूज़ चेस सिक्योरिटीज़, बट जो भी आपका दिल करता है वो सेलेक्ट करें। सो या आई मीन इट्स रियली नाइस उस तरह से। Okay. ये प्रोसेस आसान है, और खुद से प्रोसेस करें, और सारी चीज़ें वंस द प्रोसेस इज़ डन, फिर तो बहुत आसान काम है, फिर तो अब सारा काम ऐप्स पे हो रहा है, इजी हो रहा है। ऐप्स इतनी अच्छी बन गई हैं कि आप उनको यूज़ करना आपके लिए आसान है। एंड आई थिंक वंस यू मेक दैट लॉस, फिर आपको रिस्क मिटिगेशन, कितने पैसे डालने हैं, कितने हाँ निकालने हैं, हाँ, वो सारी चीज़ें में आप बहुत केयरफुल होना शुरू हो जाओगे। आई थिंक यस दैट्स वेरी यस। नाइस। Okay, Zaid, coming towards, let's say, the end of this episode, we have this one section. So far, we've done this with all our guests, which is a rapid fire. I अमेजिंग, will give you a couple of options, and you सही just have to choose KR option one or option two. And if you want, you can add a one-liner explanation and whatnot. सही If you're सही। ready for that, I think let's begin. यस, Okay. बिस्मिल्लाह। So, firstly, what do you say is the smarter approach when you are, let's say, 22, saving aggressively or investing aggressively? Investing aggressively, very aggressively, all your pocket money into investments. Build an emergency fund or start investing? Which should be a priority? 25% emergency, 75 investing. Okay. Or it could be 60-40 as well. Okay. High paying job or the job you love? What does financial wisdom say? Find a high paying job that you can love. Okay. If you're lucky enough, yeah. If you're enough. Okay. With respect to recruitment, what do you suggest? Should one stay in recruitment or start exploring other careers like you did? So there are both the things. You can do both. मेरे लिए इट वाज प्रोसेस बिल्डिंग, तो मेरी एक लर्निंग उसमें से ख़त्म हो गई थी। लेकिन आई डोंट फील लाइक कि मैं अभी भी रिक्रूटमेंट से बाहर निकला हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव बिल्ट अ नेटवर्क अराउंड मी। तो यू कैन बिल्ड अ बिजनेस अराउंड इट, और यू कैन ईदर कीप ऑन ग्रोइंग विद इन द टैलेंट Okay. domain. Which path leads to better opportunities in your opinion? Building deep expertise in one role or trying out multiple roles? Experimenting with both and then finding out a way. Sometimes a jack of all also works, and sometimes a master of one also works. So you have to find कि आप कौन से circle में हो. Okay. Lastly, which is smarter for growth, climbing the ladder or switching industries? I think that would be climbing the ladder. All right. Okay. So thank you for that, Zaid. One last thing, like on a parting note, what do you think the people of today or the younger generation of today or the ones who are graduating, both in terms of finding a job and let's say in terms of making or going towards a more disciplined approach towards investment, what are a couple of advices that you would give to them? I think first would be to understand कि आपने किस कंपनी में काम करना है, तो do very good research about the company. Right. Second, let's say if you are a student, then an intern role would be really nice. तो target the intern role really nicely. कि आपने अपनी वर्किंग की हुई हो, यू शुड नो कि आपने जो इंटर्न रोल के लिए अप्लाई किया तो उससे पोटेंशियली आप क्या सीख सकते हो, सही है, एंड व्हाट इज़ द आउटकम दैट यू कैन ब्रिंग। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी बड़ी कंपनी की बात करते हैं, आप वहाँ पर एज एन इंटर्न जाते हो सोशल मीडिया रोल के अंदर, तो आप ये बताओ कि जी दीज आर माई एक्सपर्टीज़, और मैं ये सारी चीज़ें आपको करके दे सकता हूँ, एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। थर्ड थिंग वुड बी कि यू don't just do it
with the intent कि ये internship है, सही है, आउट परफॉर्म ऑल दी अदर इंटर्न्स ताकि वो कन्वर्ट हो सके इनटू अ जॉब, सही है. तो दैट वुड बी रियली नाइस. तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक ट्रेजेक्ट्री बन सकता है. बी रियली गुड फ्रेंड्स विद टैलेंट रिक्रूटर्स. तो या दैट टू लाइक probably a good message gestures, ये they do come in handy. आपका नाम याद रह जाता है रिक्रूटर्स को कि यार इस बंदे के साथ काम करके अच्छा लगा था, एनीथिंग. एंड रिमेंबर, एक रिक्रूटर अगर एक जगह पे रिक्रूटर है, वो दूसरी जगह पे भी रिक्रूटर है. He will always be on the looks for. I always say this also, कि always be good friends with HR and finance. Yes, 100%. That's out. All right. And in terms of investment, any advice you would want to give? Yeah, in terms of investment, start as early. As of when I started stocks, I regret starting at 22. मैं और जल्दी कर सकता, मैं 19 पे अगर स्टॉक्स कर सकता तो बहुत मज़ा आता. एंड देन अगेन, अगर आप लोग ये सुन रहे हैं, प्लीज़ इन्वेस्ट अर्ली इन स्टॉक एक्सचेंज. डू इट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, नॉट फॉर द सेक ऑफ मनी एट फर्स्ट. सही है. वंस यू अंडरस्टैंड द गेम, और अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट हार्ड. It's not hard. Everyone on the world can do it. It's very easy. It's just you have to put yourself into it. There are so many good creators out there. I don't know if I can pitch myself. I also make content regarding PSX. Go watch it. I try to make things easy. Yeah. To be understood by people. So do that. A lot of YouTube people understand, listen to your gut feeling. और बहुत सारा content पढ़ा हुआ है already stocks related. तो just take that one decision. Just do it. मतलब just actually just get into it. ठीक है. 5,000 से शुरू कर सकते हैं. दैट्स अ बेयर मिनिमम. इससे ज़्यादा तो हम 3 दोस्त चाय खाने पे चले जाएं, कॉफ़ी पे चले जाएं, 5,000 से ऊपर बिल बन जाता है. तो do this for yourself. It will actually help you in the future. Okay, awesome, Zaid. I think this was really good fun, to be honest, for me, because again, Puri, a lot of the things I didn't know, to be honest, regarding your journey also, and obviously the other aspect of the investments and whatnot. I thoroughly enjoyed it. I really hope that the people listening and watching this, inshallah, will also do so. Once again, thank you so Inshallah. much for coming here to Thank you. Campus to Career, and wish you good luck for your future as well, inshallah. Thank you so much. It was a pleasure being here, and I really wish, inshallah, people listening would learn a thing or two from me, and for yourself as well. And you've been amazing host. Thank you so much for everything. Not a problem. Thank you once again. All right.